हेलो। 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रिसर्च डिजाइन हमने पढ़ा था या नहीं, स्टार्ट नहीं किया था? नहीं सर। ठीक है। तो यूनिट वन ऐसे लगभग खत्म हो गया है। यूनिट टू स्टार्ट करते हैं। यूनिट टू इज अबाउट रिसर्च डिजाइनिंग एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू रिसर्च डिजाइन। So research design, define definition of research. What is research designing? It defining that the research, after research problem is formulated, then now next step is preparation of
the design that for the research project, means your research project, because we already know how to write a research proposal, and after that we have also studied how to present your research proposal in front of the funding agencies. So after that, your next step is, after you have grant money or some fund, you have got some fund, then you have next step is to design your research, which is the main crucial step for the successful of the your research project. For that, you have to prepare a blueprint or step by step planning of your research. That is called research designing. And this research designing having four part. It consists of four part. This mainly first part is the sample designing. Sample, what is sample? Sample is the representation of the total populations. That's called sample. मीन्स जो आपका रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें हम मान लो 10,000 पीपल के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो सबको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू make some, choose some representative of this particular area, that is called sample. जैसे कि हम सैंपल करने जाते हैं, तो टोटल स्टडी इन ए होल ग्राउंड वाटर और होल सरफेस वाटर, we cannot study total, so you have to take sample. So sample, how to take sample, what is the methods of selecting this sample, these all are the part of the research sample designing, because sample designing deals with the method of selecting the items or the sample. How, because we next subsequent classes we will study what are the different methods of selecting the sample, because we cannot select the sample arbitrarily. So there are specific method, depending on our research we are selecting different methods for selecting the sample. So how the sample are selected, that you have to make a plan. So that is comes under sample designing. Second part is the observational designing, which relates the conditions under observation is made. That means after the taking sample, which conditions you have to prepare the your research or make observations to make the data, prepare the data. So this is called observational training. Sorry, observational designing. That means plan the different observational methods. Third point is statistical designing. In the observational point part, you have got the data or measured data. After that, you have to make some analysis with different statistical tools are there. So through which tools you have to analysis your data, that also you have to first design, that is your statistical designing. So you have to prepare step by step guidelines by which you can analyze your data, represent your data. That depends on the statistical design. It concerns with the questions how and where the information and data generated or gathered. That means the data are gathered. That means how you can be process the data, which process, which steps. Then operational designing deals with the technique by which procedures specified in sampling, statistical and observational designing. This is the standard operation procedure but which you have to prepare or follow the above three designing. The sample designing, observational designing, statistical designing. So which step is crucial? Which step 1, step 2, step 3? A particular procedure you have to make or prepare, and according to you have to follow this all this designing. So that is called operational designing. So these four methods or four steps of the four parts of this research designing consist of sample designing, operational designing, statistical observational designing, statistical designing and operational designing. Then come to important features of this research designing. So इसको हम क्यों करते हैं? First, it is a plan that specify the resource sources and types of information relevant to the research. Because research डिजाइनिंग में क्या होगा, आप नहीं करोगे तो फिक्स, जैसे कि कोई घर बनाना है, डिजाइनिंग सही से नहीं होगा तो घर प्लान नहीं होगा तो कैसे बनेगा. Similarly, research you have to have some specified amount of money and the time. आपका पास बजट एंड टाइम दोनों लिमिटेड है, तो पहले से प्लानिंग नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, बाद में फंडिंग भी खत्म हो जाएगा, टाइम भी नहीं मिलेगा, और यू हैव नॉट गॉट द फाइनल गोल ऑफ द क्वेश्चंस, आउट आंसर हमको नहीं मिल पाएगा. सो यू हैव टू मेक अ स्पेसिफाइड प्लान एंड स्टिक टू द प्लान. तो ये जरूरी है.
It is the strategy of specifying which approaches you will use to data collection analysis. Data collection method, analysis method, there are different methods are there. So पहले से ही select करना पड़ेगा कि कौन सा, which is the appropriate method for your research. Then it also includes the time and budget of the studies under various constraints. पहले से आप प्लान प्रिपेयर करके रखे हैं तो उसके हिसाब से हम चलेंगे तो ये सारे चीज आएंगे टाइम और बजट के हिसाब से. यू हैव फिनिश योर रिसर्च, you cannot say that money or budget is insufficient or time is insufficient, so you have to make a plan. So for the research, carry out the research, there are different important terms are there. जैसे कि first term is variable. What is variable? Variable is the concept which takes the different quantitative value or variable. Means कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है वेरिएबल में. फॉर एग्जांपल लेट से एक्स, एक्स इज ए वेरिएबल. X we are denoting the x or y as something which does not fix the value. If you are measuring temperature, then x1 x2 x2 denotes temperature. If you are measuring pH, then x1 x2 x3 denotes the pH, and the actual value are also depend the after measurement. So variable are the different quantitative different things which are changes according to your data. This is called variable. So there are different types of variables are there. Continuous variable and discrete variable. Continuous variables is a variable which is continuity or continuous takes place. Every phenomena which can take an quantitatively different value even in a decimal parts are called continuous variable. जो कि कोई भी डाटा है वो कंटिन्यू होना चाहिए और जो इवन इफ डेसिमल में हो या नॉर्मल वैल्यू हो. फॉर एग्जांपल एज, you if you are सर आपकी वॉइस बीच बीच में चली जाती है. हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी तो सुनाई देगा. हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी तो आ रही, बीच बीच में कट जा रही है. अच्छा वो शायद नेटवर्क इशू हो सकता है. ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है. हाँ, वेरिएबल कम मिनिमम पहले जो है तो दो तरीका का वेरिएबल होता है. पहले कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, दूसरा डिसकंटिन्यूस वेरिएबल और नॉन कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल. कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मींस दोज वेरिएबल्स व्हिच आर कंटिन्यूटी टेक्स प्लेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल एज, किसी का एज एक साल के बाद डायरेक्ट 5 साल नहीं होता है, बीच में 1.2 1.3 1.3 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इट इज ए कंटिन्यूस डाटा. कोई मेजर करना चाहे कोई किसी का एज, दैट इज ए कंटिन्यूस डाटा. So it is called continuous variable. Even if it decimal number or anything, it is does not jump from 1 to second. Second is discrete variable. This is a phenomena only when it is expressed as integrated value or non-continuous number. For example, number of the student or roll number of the student. For example, किसी के क्लास में रोल नंबर 1 2 3 इसके बाद 8 भी हो सकता है, 5 6 को छोड़ के चले गए, तो ये जो नंबर्स है दिस में भी डिसकंटिन्यूअस और ये जो डाटा रहता है ये डिसकंटिन्यूअस डाटा है. सो दीज आर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, दो तरह का वेरिएबल्स होता है. अगेन वेरिएबल्स आर अगेन टू टाइप्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इट इज द वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द अदर्स, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से सम equation x equal to 5 y equal to 5x, this is a value or equations. Y equal to 5x. so y जो है that is dependent variable है, but 5x जो है x is independent variable. हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितना भी पुट करेंगे साइमल्टेनियसली वो उसका रिलेटेड y का वैल्यू मिलेगा. सो दैट इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट. कोई एक वैल्यू दूसरे के साथ डिपेंड हो रहा है तो उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल सेक्टर में हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल बीओडी और सीओडी वैल्यू आपको निकालना है, तो दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल. बिकॉज बीओडी निकालना है तो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू. डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू मिलेगा तभी बीओडी मिलेगा और सीओडी मिलेगा. तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, बट बीओडी सीओडी ये डिपेंडेंट है, दूसरा कोई इसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है. सो दिस इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे वैसे एग्जांपल्स कोई दिया हुआ. एग्जांपल हाइट डिपेंड्स ऑन एज ऑफ द स्टूडेंट और हाइट इज डिपेंडेंट एंड एज इज इंडिपेंडेंट. यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, किसी का हाइट के हिसाब से एज बढ़ता है, सॉरी एज के हिसाब से हाइट वेरी होता है.
तो एज इज इंडिपेंडेंट एंड हाइट इज डिपेंडेंट, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ऐसे। देन मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू इज द नेक्स्ट वेरिएबल इसका एक्सट्रानियस वेरिएबल, ये क्वेश्चन से आता है एक्सट्रानियस वेरिएबल किसको बोला जाता है। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट does not directly related to your research, but what happen it may affect the result, that is called extraneous variable. Some variables which are not related to your purpose of the study, आप purpose आप intentionally उसको आप स्टडी नहीं कर रहे हो, बट आपने जो स्टडी कर रहे हो वैल्यू दैट मे बी इफेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो इफेक्ट कर रहा है, बट फॉर somehow it may be affect your study or result, that called extraneous variable. For example, if you are to measure temperature or going to measure the pH of the some reading, किसी का आप सैंपल ले रहे हो, टेम्परेचर, पीएच, पीओडी, सीओडी सब रीडिंग ले रहे हो, बट वी डू नॉट कंसीडर द वेदर कंडीशंस और थिंग्स। तो आज बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो सकता है, आज धूप दे रहा है, धूप हो रहा है खाली है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, उसका पीओडी में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू मेजर द वेदर कंडीशंस, वी आर इंटेंशनली गोइंग टू मेजर द actually the measurement of the data, but we are, although it is weather is the not the part of your experimental study, but it may affect the result। इस तरीके का एग्जांपल्स आप दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रानियस वेरिएबल। द मोस्ट ये डेफिनेशन इज इट इज द वेरिएबल नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पर्पज ऑफ द स्टडी, बट मे बी डिपेंडेंट इफेक्ट द स्टडी, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रानियस वेरिएबल, और मे बी इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी, ए एक्स जो है एक्स ठीक है डिपेंडेंट है, पर बी सी जो है दैट इज द लास्ट पार्ट, उसको इग्नोर भी कर भी देंगे तो अभी इक्वेशंस में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला। तो दैट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर सो मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन आवर research in this type of doing a research, so these are called extraneous variable. If the extraneous variable effect is more, then we may take account of this, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, ठीक है चल जाएगा नेग्लेक्ट करने में, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस, तो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सटर्नियस वेरिएबल। नेक्स्ट टर्म इज कंट्रोल। कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं जब भी एक्सपेरिमेंट में करते रहते हैं। कंट्रोल इज यूज्ड व्हेन वी डिजाइन द स्टडी मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नियस वेरिएबल। तो एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नियस वेरिएबल है जो थर्ड पार्टी है, मतलब उसका इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कंट्रोल यूज करते हैं। कंट्रोल दैट मीन्स वी कैन सेट ब्लैंक और सम स्टैंडर्ड्स कंडीशंस और रेफरल्स भी बोल सकते हो। कोई 5 सैंपल है उसके साथ एक कंट्रोल हम यूज करेंगे, ब्लैंक यूज करेंगे। दैट मीन्स वाटर सैंपल मान लो हम लेते हैं, तो ब्लैंक या जो कंट्रोल हम बोलते हैं उसमें क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर ही रख देते हैं, उसमें कुछ भी सैंपल्स नहीं होता है। तो ये स्टैंडर्ड और रेफरेंस करने के लिए एक एक जस्ट हम लोग एक रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। so in terms of definition it is used when we have to study the minimizing effect of extraneous variable। तो extraneous variable जो है उसको minimize करने के लिए हम लोग control is taken as a refer or standards। then hypothesis, we already discussed what hypothesis, what is it? Hypothesis is the assumptions or predictions of the research result before carrying out the result। कोई आप जो रिसर्च क्वेश्चंस जो हम लोग सर्च करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट, ये एक्चुअली रिसर्च करने के बाद हमको पता चलता है कि हाँ इसका ये वैल्यू है इसीलिए ये हो रहा था। बट मान लो कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसका रिसर्च एक्चुअली आप बिफोर डूइंग द रिसर्च वी हैव एज्यूम समथिंग एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। व्हेन predictions or assumption is made of the research of hypothetical relationship which is before going to the research, that is called research hypothesis। and the hypothesis or research hypothesis go to be tested in methods, और जो हम assumptions किए हुए हैं that is not haphazard manner and that assumptions must be tested with different scientific methods। तो hypothesis testing आपका नेक्स्ट यूनिट में है। तो हाउ वी आर डूइंग द hypothesis testing, we have to study in details। टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, बहुत सारे एफ टेस्ट है। so there are statistical tools are there, statistical methods are there where we can test the hypothesis। so normally research hypothesis क्या है, एक assumptions है। then experimental group, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जानने से पहले ग्रुप क्या है जानना पड़ेगा। ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप इज एक्सपोज टू द सम नोवेल और कंडीशन। जो ग्रुप है दैट इज एक्सपेरिमेंट या में कर रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन ग्रुप्स क्या है, इट इज ए गैदरनेस और कॉम्बिनेशन ऑफ सम काइंड्स ऑफ कंडीशन और सम काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स। हम लोग जैसे कि एक तालाब से जो पानी लाए हैं
उसको एक अलग से जगह पे रखेंगे, उसको ग्रुप ए नाम देंगे। कोई नदी और रिवर से पानी ला रहे हैं, उसको ग्रुप बी नाम देंगे। और अंडरग्राउंड से जो पानी हम सैंपल लाए हैं उसको ग्रुप सी नाम में देंगे। दैट आर कॉल्ड ग्रुप व्हिच टू बी एक्सपेरिमेंटल, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देन कंट्रोल ग्रुप्स। कंट्रोल ग्रुप्स क्या है? when group is exposed to usual condition of the experiment hypothesis, that is research। कंट्रोल ग्रुप को क्या करना है? ग्रुप के साथ तो रखना है, बट इट इज डज नॉट गोइंग टू बी हैव सम कंडीशंस। उसमें कुछ भी, मान लीजिए हम 5 सैंपल के साथ एक कंट्रोल है, तो कंट्रोल में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं डालेंगे, और सैंपल है उसमें 1 ml H2SO4 डालेंगे, एक उसके बाद 1 ml KCl डालेंगे, फिर उसका DO कैलकुलेट करेंगे। बट जो कंट्रोल होगा उसके साथ कुछ भी हम ऐसे नहीं करेंगे, बस उसको एक रेफरेंस रखने के लिए स्टैंडर्ड रखेंगे और डिस्टिल वाटर रख देंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप्स। देन कम द नेक्स्ट टर्म, दैट इज ट्रीटमेंट। ये एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप, व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज ट्रीटमेंट। तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट क्या है? इट इज अ डिफरेंट कंडीशन अंडर व्हिच एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स इज पास्ड। जो कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। जो ग्रुप है या जो भी कोई भी सैंपल है, उसको मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 दिन रखना है हमको, उसके बाद उसको डार्क करके रखना है, उसके बाद सबको कुछ कुछ अमाउंट ऑफ 5 RPM या 6 RPM में उसको सेकिंग करना है। जो कंडीशंस में हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस में 5 दिन रखते हैं, दैट इज द ट्रीटमेंट। ये जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कंडीशंस, वो सैंपल हो, कंट्रोल हो, किसी को भी हो, सो दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। दैट इज ए कंडीशन अंडर व्हिच द ग्रुप्स आर बी पास्ड, और दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। देन एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? हम लोग नॉर्मल एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट डेफिनेशन से क्या है? द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रूथ, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रूथ ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस होता है, दैट इज द एज्यूम्पशंस बिफोर डूइंग द रिसर्च, उसको सच साबित करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, वी आर मेकिंग द व्हाट इज द रूम टेम्परेचर नाउ। ये हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए। तो अभी रूम टेम्परेचर कितना होगा? फॉर एग्जांपल लेट्स से एज्यूम रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने जो एज्यूम्शंस किया 27 डिग्री, ये हमने तो टेम्परेचर लेके अभी मेजर नहीं किया हुआ है, बस जो कंडीशंस है, जो फील हो रहा है, नॉर्मल जो वेदर कंडीशंस है, उसको देख के हम बोल सकते हैं कि 27 डिग्री है। तो अभी इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर लाना, थर्मोमीटर लाना पड़ेगा, उसको रूम टेम्परेचर में देखना पड़ेगा और नोट डाउन करना पड़ेगा। ये होता है एक्सपेरिमेंट। ये दोनों चीज है, जो हाइपोथेसिस को ट्रूथ साबित करने के लिए जो हम लोग करते हैं जो काम, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। दीज आर द साइंटिफिक डेफिनेशंस। एक्सपेरिमेंट आर दो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट? व्हेन वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फॉर आवर सेक एंड दैट इज नॉट कंपेयर टू एनीवन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, टेम्परेचर मेजरमेंट हो रहा है, अभी कितना डिग्री है, ये है एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट, ये हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरा कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट क्या है? अभी 1 घंटा बारिश हुआ है, तो अभी बारिश होने से पहले कितना टेम्परेचर था और बारिश होने के बाद कितना टेम्परेचर हुआ। वाटर सैंपल, रेनी सीजन, बिफोर रेनी सीजन, आफ्टर रेनी सीजन, ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। इसके साथ भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशंस आर देयर। देन एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अभी व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है? यूनिट इज नथिंग बट द लास्ट आवर द मेजरमेंट होता है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मीटर, यूनिट, ग्राम, ये यूनिट है। ओके, दैट इज राइट। बट समटाइम्स यूनिट्स आर द वन टाइप ऑफ ग्रुप और वन particular blocks when we are considering some area, that is called units। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? the predetermined plots or blocks have different treatments, experiment are called experimental unit। तो एरिया के केस में हम लोग क्या करेंगे? एक पार्टिकुलर ग्रुप में सब डिवाइड कर देंगे। जैसे कि गुजरात स्टेट है, उसको हम लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, उस 2 जोन में। फिर 10 डिस्ट्रिक्ट्स को 5-5 छोटा छोटा ब्लॉक में और डिवाइड कर देंगे, जो कि पंचायत में ऐसे। तो ये एक एक क्या होगा? एरिया वाइज डिवाइड करेंगे और उसी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट। और एक्सपेरिमेंटल यूनिट जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल यूनिट जिसमें कंट्रोल रहता है और कुछ नहीं। यूनिट मींस दैट वर्क। देन research design for exploratory research। Then come to our next part, what the research designing.
already we are knowing the different types of the research. Types of the research हमने पढ़े थे ना. There are 10 or 12 different types of research. Pure research, applied research. याद है आपका? हेलो. यस सर. हाँ, टाइप्स ऑफ रिसर्च याद है? कितने टाइप्स के थे? टाइप्स ऑफ रिसर्च. हाँ, प्योर अभी तो रिसर्च, एप्लाइड याद नहीं है. रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च. यस सर. हाँ, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप्स ऑफ रिसर्च द डिजाइनिंग और रिसर्च डिजाइनिंग वेरी करता है. तो हियर यू हैव टू सी द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ये दोनों हम लोग मैक्सिमम देख रहे हैं. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? जो रिसर्च में हम लोग पहले से ही डाटा है और वो डाटा को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और वो डाटा को लेके हम लोग क्या करते हैं, उसको और डेस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च करते हैं. दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यू हैव टू डू पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ऑन दिस. कोई किसी को हाइपोथेसिस को ट्रू करने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल मेजरमेंट करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं. तो ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है उसके लिए क्या क्या डिजाइन करना पड़ेगा, वही है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन डेवलपिंग द वर्किंग हाइपोथेसिस. जो हाइपोथेसिस है उसको रियल बनाने के लिए वो डिफरेंट स्टेप्स है. तो उसको मेनली बोला जाता है सर्वे और कन्वर्जिंग लिटरेचर, जो कि सर्वे मेथड्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, सर्वे करते हैं. सर्वे मीन्स वी हैव टू सर्च और सम ट्रूथ इनडायरेक्टली. उसको सर्वे मेथड बोलते हैं. किसी से पूछना, किसी क्वेश्चन देना, हम आएंगे उसमें डिफरेंट मेथड्स में. देन एक्सपेरिमेंट सर्वे मेथड, एक्सपीरियंस सर्वे और नॉर्मल सर्वे, ये डिफरेंस चीज है. नॉर्मल सर्वे क्या है? हम लोग खुद जाएंगे और उसमें हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जस्ट न्यू फील्ड में हम लोग खुद पढ़ेंगे, उसमें पूछताछ करना पड़ेगा. तो एथिकल प्योर सर्वे. और सर्वे एक्सपीरियंस सर्वे मीन्स पार्टिकुलरली जो बंदा उसको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उस फील्ड में, उसको हम चार्ज देंगे कि तू जाके सर्वे कर वहां पे. तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस सर्वे. किसी को एक्सपीरियंस पहले से है, उसके ऊपर हम लोग उसमें जाके डाटा कलेक्शन कर रहे हैं. ऑल दीज आर द डिफरेंट मेथड्स. तो इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ये जो सर्वे है, एक्सपीरियंस सर्वे, उसका महत्व होता है. एनालिसिस और इनसाइड स्टिमुलेशनल एग्जांपल्स. जो एनालिसिस करने के बाद, एक्सपीरियंस सर्वे के बाद जो हम लोग को डाटा आया, उसको क्या करना, एनालिसिस करेंगे. इनसाइड स्टिमुलेटिंग एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हम लोग जो डाटा आया and we have find the truth of the hypothesis within that analysis of the survey. उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, जो हमको आंसर्स मिला पब्लिक से या जो सर्वे करने के बाद डेटा मिला, उसको हम एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस मींस वी हैव टू थिंक इन 1 2 3 4 5 डिफरेंट वे में उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. देन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज के ऊपर और उसका रिसर्च डिजाइनिंग करते हैं, तो देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजाइनिंग व्हिच शुड बी फॉलोड बाय दिस रिसर्च डिजाइनिंग. So what are the principles? These are the unique three principles. Principle of replications, principle of randomizations and principle of local control. एक आता है 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का भी क्वेश्चन आएगा. तो यू हैव टू राइट सम थिंग्स. ये सिर्फ लिखने से नहीं होगा. प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, what it says, when you're for this experimental, when you do the experiment in different times, different places, small error को छोड़ के बाकी what happen, the total result should be replicate. कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने आज किया हुआ है, 10 दिन के बाद करेंगे, दूसरे जगह पे करेंगे, तो थोड़ा सा एरर आ सकता है, बट वी हैव टू मेजॉरिटी ऑफ द आवर रिजल्ट शुड बी रिप्लिकेट इफ यू आर यूजिंग सेम कंडीशन ट्रीटमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल यूनिट. देखिए अभी सारी चीजें यूज हो रहा है यहाँ पे. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन. कोई हमने डिजाइन बनाया है, फॉर एग्जांपल एक घर आप बना रहे हो, और जो आर्किटेक्चर के पास डिजाइन बना के हमने लाए, तो वो जो रिसर्च समझने के लिए जो डिजाइन उसने दिया, उसी डिजाइन पे घर अमेरिका में बनाओगे तो भी सेम दिखेगा, इंडिया में बनाओगे तो भी सेम दिखेगा. थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है मटेरियल यूजेस में, बट
the output result should be same. Similar here, the research, in this case research, our result is our measurement data, that is same under same designing, क्योंकि हमने बेस उसी को लिया था. So this is the principle of replication. Second principle is called principle of randomization. While collections of the sample, research sample collection के टाइम पे क्या करना है, we are not putting effort or not measuring whole population. कोई रिवर में कोई वाटर हम लोग सैंपल लेके हम लोग कर रहे हैं ना, पूरा रिवर का सारा पानी तो हम एग्जामिन नहीं कर रहे हैं. बट whenever we are do the sample analysis that represent whole water or whole body, in that case you should not have any biasness. That is called fully random. हमने किसी को भी चूज नहीं किया बायस करके. जो सैंपल लाया दैट इज रिप्रेजेंट होल यूनिट, एंड द सेम डिजाइनिंग और सेम रिसर्च डिजाइनिंग is done will be carried out in same in a that way that it biasness is minimized and done in a randomly order. अभी जो सैंपल हमने लिया, मान लो गंगा रिवर का पानी टेस्ट कर रहे हो, आज एक सैंपल लेके आए, जो रिजल्ट आया दूसरा दिन या दूसरा कोई जाके भी सैंपल लेके आएगा तो सेम रिजल्ट आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने गंगा नदी बोल के जाके कहीं दूसरे तालाब से पानी लेके आ गया तो रिजल्ट इज फुल्ली वेरिड. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये बोल रहा है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन. दैट प्रिंसिपल और रेंडमाइजेशन सेज दैट योर डिजाइनिंग शुड बी सेम if there is randomness is more minimization of this biasness. Third is called principle of local control. तो व्हाट इज लोकल कंट्रोल? जो एक्सपेरिमेंट हमने कर रहेंगे, जो भी डिजाइन किया हुआ है, दैट मे बी इफेक्ट समहाउ अंडर द लोकल सर्कमस्टेंसेस. आपने जो कंडीशंस जो है एक्सपेरिमेंट है, दैट फॉर एग्जांपल इफ यू आर ग्रोइंग, एग्जांपल दे रहा हूं, इफ यू आर ग्रोइंग सम ट्री इन ए पार्टिकुलर एरिया, एक जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, कोई भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कहीं पे भी कोई भी ट्री ग्रो कर रहे हो, एक साल तक आपने उसको स्टडी किया, पहले से बीज से लगाने से एक साल तक कितना हाइट हो रहा है, कितना क्या स्टडी कर रहे हैं. तो ये जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अपना लोकल क्लाइमेट और द लोकल एनवायरमेंट के ऊपर. मान लो सेम चीज का एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कहीं पे, दूसरा कहीं जो भी एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है या एक्सट्रीम ये कंडीशन है, तो एट दैट पॉइंट there is some varies of the result may be due to the climate or the local situations. That is called local control. ये तो एक एग्जांपल हुआ. दूसरा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू सर्वे और एनालिसिस थिंग, कोई सर्वे करना है आपको, किसी डाटा कलेक्ट करना है, आप तमिलनाडु चले गए, आपको तमिल आता नहीं है और वहां से आपको कलेक्शन करना है डाटा, तो वहां पे जाने के बाद आपको तमिल तो पहले सीखना पड़ेगा. दैट इज द लोकल कंट्रोल. तो तमिल सीखना है, उसके बाद एग्जैक्ट डाटा कलेक्शन करना है, तो दैट मे बी वेरी समथिंग. द लोकल क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, लोकल एनवायरमेंट may affect the things, but the actual result may not conflict. So that is called principle of local control. So these three principles should be passed in your experimental design. Then types of the experimental design. ये लास्ट अभी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इतना ही है. तो डिफरेंट टाइप्स है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में. तो व्हाट आर दिस टाइप्स? सो देयर आर मेनली टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टाइप्स, फ्रेमवर्क्स बोल सकते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड इनफॉर्मल डिजाइन, सेकंड इज कॉल्ड फॉर्मल डिजाइन. इनफॉर्मल मतलब उसका कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. अगेन इनफॉर्मल डिजाइन इज डिपेंड ऑन थ्री टाइप कैटेगरी. तीन कैटेगरीज का इनफॉर्मल डिजाइन बोला जाता है. क्या क्या है वो? बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन. पहले समझना इसको. बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल. कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है? एक सैंपल होता है, एक कंट्रोल होता है. सैंपल जो होता है बिफोर एक पर्टिकुलर सिचुएशन एक सैंपल लेना है, आफ्टर पर्टिकुलर सिचुएशन एक सैंपल लेना है, तो दो सैंपल हो गया. एंड एक कंट्रोल और ब्लैंक लेना है, दैट इज ए प्योर कंट्रोल, उसमें कुछ भी सैंपल नहीं है. तो ये तीनों को करना है इन एवरी केस. बट इन द फास्ट इनफॉर्मल डिजाइन क्या बोल रहे हैं? विदाउट कंट्रोल डिजाइनिंग. उसमें कंट्रोल रखना ही नहीं है, सिर्फ बिफोर हो आफ्टर जो है उसको आपको एक्सपेरिमेंट करना है, डाटा एनालिसिस करना है
और उसके बेस में यू हैव टू मेड ए कंक्लूजन. फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग वाटर सैंपल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और ओपन बेस्ड रिसोर्सेस बिफोर रेनी सीजन आफ्टर रेनी सीजन. दो सैंपल लिए, एक्सपेरिमेंटल कर डाले, बीओडी सीओडी जो भी है सारी चीजें. ये हो गया इनफॉर्मल डिजाइन बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल. सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल. कोई सिचुएशंस का पहले वाला डाटा नहीं है, बस उसका आफ्टर में डाटा है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन इन ए पर्टिकुलर आउटलेट ऑफ ए इंडस्ट्री. कोई इंडस्ट्री से जो आउटलेट है उसमें से कितना वाटर पॉल्यूशन आपको नदी में छोड़ रहे हो, रिवर में, तो उसमें क्या करना है, बिफोर करने का जरूरत नहीं है. जो नदी से पानी इंडस्ट्री में यूज होने के लिए आ रहा है उसको करने का जरूरत नहीं है. क्या करना है हमको, जस्ट वी हैव टू कलेक्ट सम इफ्लुएंट वाटर. इफ्लुएंट के जो वाटर है, जो आउटलेट है, उसको सैंपल एनालिसिस करना है. और उसके साथ किसको एग्जाम्पल करना है, कंट्रोल. व्हाट इज कंट्रोल, वो डायरेक्ट जो डिस्टिल वाटर है या जो प्योर है या रेफरेंस है उसके साथ कंपेयर करना है. दैट इज कॉल्ड आफ्टर ओनली एंड कंट्रोल डिजाइन. तो थर्ड इज बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल. इसमें क्या करना है, तीनों रखना है. बिफोर में भी सैंपल रखना है, आफ्टर का सैंपल रखना है, कंट्रोल भी रखना है, एंड वी हैव टू कंपेयर ऑल द थिंग्स. दीज आर कॉल्ड बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल. So in case of informal experimental design, these three categories of research design are there. But the third is that is before and after with control. That is the most acceptable research designing. ये करने से आपको डायरेक्ट ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा and you have to reliable your own conclusions. But some cases we may not be include this third. बिफोर आफ्टर भी हो सकता है, कंट्रोल नहीं भी रख सकते हैं, आफ्टर विथ कंट्रोल भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च कंडीशंस, योर रिसर्च क्वेश्चंस, योर रिसर्च फंडिंग, योर टाइमिंग. ये सब के बारे में सोच के आपको आपका यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट व्हिच रिसर्च डिजाइन यू हैव टू गो विद गो आउट. उसी हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा. सेकेंड इज कॉल्ड फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग. तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग जो है फॉर्मल वे में है. so there are again 4 type of experimental designing are there. One is called completely randomized designing. This is the purest form of and highest purity of this research designing, because we are not doing any biasness, purely completely random sample है. कोई हम लोग 10 सैंपल उठा के लाए तो किसको एग्जाम मतलब एक्सपेरिमेंट में जान लेने के लिए जाना है, तो वी हैव टू जस्ट क्या करना है, रैंडम चूज कर देना है, आंख बंद करके 1 2 3 4 5 कोई भी सैंपल. लॉटरी मेथड, लॉटरी से जो उठाना है, दैट इज कॉल्ड रैंडम, कंप्लीटली रैंडम. दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रैंडम डिजाइनिंग. सेकंड इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड विद ब्लॉक डिजाइनिंग. दिस इज ए समथिंग काइंड ऑफ distribute these samples within certain blocks. कोई ब्लॉक्स मींस इफ यू आर एक्सपेरिमेंट डूइंग फॉर पर्टिकुलर एरिया, तो उसमें जैसे कि हमने बोला कि स्टेट है तो उसमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कर देना है, ब्लॉक्स कर देना है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंप्यूटर स्क्रीन इज ए होल स्क्वायर ऑफ सैंपल. कंप्यूटर स्क्रीन जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इफ यू आर डिवाइड इक्वली 5 रोज एंड 5 कॉलम, तो 25 ब्लॉक्स में बी फॉर्म. so each blocks you have to take a samples. so जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक से एक सैंपल लेना है. तो वो क्या हुआ, एक रैंडम भी है बट दैट मे बी सर्टेन कंडीशंस भी है. इन दैट केस दिस इज कॉल्ड ब्लॉक रैंडमाइज्ड डिजाइन. तो ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं. थर्ड इज कॉल्ड Latin square designing. In this case, the blocks are replaced by the square. Blocks may not be a perfect square. ब्लॉक राउंड भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कोई जोन भी हो सकता है, कोई इरेगुलर शेप भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड ब्लॉक. बट स्क्वायर डिजाइनिंग क्या है, जो एरिया है उसको परफेक्टली स्क्वायर स्क्वायर शेप में लेंथ जितना है, ब्रेड जितना है, उसी हिसाब से हमको पूरा डिवाइड करना है होल यूनिट को. दैट इज कॉल्ड लैटिन स्क्वायर. और उसमें नाम दे देना है 1 2 3, जो लैटिन नंबर होता है उसमें नाम दे देना है. तो उसी से हमको सैंपल लेना है. फोर्थ इज फैक्टोरियल डिजाइनिंग. फैक्टोरियल डिजाइनिंग मीन्स whenever the number of square और number of जो ब्लॉक है उसको हम कितने नंबर्स ऑफ ब्लॉक डिजाइन करेंगे उसको भी हमने स्पेसिफाई करना है. तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल. तो 6 इंटू अप टू 1 तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो if you decide how much the block should be prepared, how much sample will be taken from, that will be
asks or that will be conclude from the factorial methods, then it's called factorial designing. So these things are mostly different types of experimental designing. Normally we are going for informal experiment in our environmental science. If you are taking water sample for experiment, then this informal designing before after with control, ये normally जो time frame के हिसाब से you have to go for this type of experimental designing. So this is all about experimental designing. experimental designing में इतना ही है. आपको ये सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं ना, मैंने एक दिया था शायद कोड, उसमें ज्वाइन किए आपने? there is a Google Classroom code, I will share. आपने डाउनलोड किया कि नहीं पता नहीं, एक मिनट में देता हूँ. यस सर. उसमें है ना ये मटेरियल गूगल क्लासरूम में. आपने कौन से वाले में सर? ये जो कौन से क्लासरूम में? जो ये हैंड राइटिंग वाला और जो पीपीटी मैंने पढ़ाया था वो सारी चीजें नहीं है? सर एक बार मुझे वो क्लासरूम कोड भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा एक बार. हाँ हाँ मैं देता हूँ, उसमें ज्वाइन हो जाएगा. वो लास्ट ईयर वाला क्लासरूम कोड है, बस उसमें सारे मटेरियल अपलोडेड है, जो पढ़ा हुआ है वो भी और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी है. तो ठीक है, आप भेज. हाँ, इसमें आज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें, क्योंकि आएगा आपका. ठीक है, तो एक बार भेजिएगा ना. नहीं सर, इसमें तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं मतलब पढ़ लूंगा, फिर आपसे बात करता हूँ एक बार. हाँ हाँ, वैसे है नहीं कुछ ज़्यादा. अभी नेक्स्ट हम लोग एक्चुअली क्या है ना, यूनिट 4 जो है आपको उसको जो मीन मीडियन मोड वो स्टार्ट करेंगे, तो आपको कैसे करेंगे उसमें आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, एक समझा दूंगा फिर आपको उसको करना पड़ेगा. तो देखते हैं उसमें, या आपको ऐसा कर सकते हैं एक दो समझा के उसके बाद आप करके फिर दिखाना पड़ेगा कि आप एक्चुअली एग्जाम में वही ज़्यादा वही आने वाला जो मेन मेन क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में खास करके. एक मिनट में देखता हूँ पहले. ओके सर. ठीक है, आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, नहीं तो कुछ दिक्कत हो तो पूछना मुझे. ओके सर, आप मुझे कोड भेज दीजिएगा ना, एक बार मैं हाँ देख एक लेता हूँ. मिनट में कौन सा मैं देखता हूँ कहाँ पे डाला हुआ है. ठीक है. हाँ ये वाला है कोड. कहाँ गया? हाँ इसमें है सारी चीजें. ओके सर. एक मिनट इसको मैंने कॉपी लिंक ये कर देता हूँ. ठीक है. ठीक
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रिसर्च डिजाइनिंग। ओके सर। जैसे जब हम लोग आएंगे तो डाटा कलेक्शन प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को जो है ना यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उनको स्टैटिस्टिक प्रोजेक्टर खराब हो गया है, तो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ब्लैक बोर्ड में। तो आप तो इंटरनल एग्जाम से ही आने वाले हैं? नहीं सर सर। तो ठीक है, कोई भी पढ़े चलेगा काम, क्योंकि वो इंटरनल ओके एग्जाम में सर। उनको स्टैटिस्टिक वाला पूछना है हमको। अच्छा अच्छा। स्टैटिस्टिक्स वाला। हाँ, यूनिट 4 एक्चुअली हमने स्टार्ट किया है कॉलेज में, तो मीन अच्छा मीडियन अच्छा मोड अच्छा। निकालने के लिए, तो हम भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कल देखते हैं। वो ठीक है किताब सर। लाना पड़ेगा, वो बुक कॉलेज में रह गया है मेरा। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट। बाय गुड नाइट सर। खाना हो गया सर? नहीं नहीं, अभी खाएंगे, खाना बना दिया था। ओके सर। ओके। बाय सर।